Hello students, welcome to our first lecture of 12th standard. Okay, so in first lecture we are going to study the paper pattern of bookkeeping and accountancy. Okay, so your paper consists, as all of you are very well aware, that your bookkeeping and accountancy subject is for 100 marks. Okay, but your written paper is of 80 marks, 20 marks. You have your internal exams, you have your practical exams, and all of that they aggregate the marks. Okay, and you get that 20 out of 20, or mostly 18, 19 out of 20 they give you. Okay, projects you have to give their practical exams whenever they are conducting of 10 marks, 20 marks, and plus they take it a board practical exams during the month of February. So please be very well aware. See this throughout the year of 12th standard. Try to be in touch with the college about what is happening and what is not. Just try to avoid coming in their bad books. Okay, कि भाई someone you are someone कि आप ऐसे हो कि भाई जो प्रोजेक्ट देता ही नहीं है या हर बार मतलब प्रैक्टिकल्स के लिए आता ही नहीं है, तो मतलब ऐसा मत करो. एक नेगेटिव इमेज मत बनाओ, बिकॉज वो 20 आउट ऑफ 20 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 20 या 18 या 19 आउट ऑफ 20 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बुक कीपिंग इज अ सब्जेक्ट वी ऑल नो वी कैन स्कोर total out of 100 out of 100. Understood? So just try to avoid that coming in the bad image. Now, so for this 80 marks, okay, what is going to be, क्या फेस करने वाले हो फरवरी में. Okay, so that we are going to understand first the paper pattern today, and then I will explain you the chapter wise weightage of marks, and accordingly we will be going with our syllabus. Okay, so very first question here is of from the following types of sub questions. Attempt any 4 you have to attempt. Okay, any 4 sub questions. Okay, for objective type questions which is of total 20 marks. Okay, you will be getting your 20 marks. So इसमें भी आपके पास options हैं. Any 4 you have to attempt. आए हुए कितने होंगे नहीं, आए हुए 4 ही होंगे. Okay, but these 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these 10 types of objective questions are there. Out of these 10 types, any 4 type of questions will be there in your board paper. Okay, so either it will be select the correct option and rewrite the sentence. Please remember you have to rewrite the sentence. Okay, just उसमें से 4 ऑप्शन होगा, उसमें से सिर्फ कोई ऑप्शन का ऑप्शन ए ड्राइंग्स या ऑप्शन सी कैपिटल ऐसे करके आंसर नहीं लिखना. यू हैव टू रीराइट द सेंटेंस. सो इट्स काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर समथिंग विल बी मिसिंग. उसके लिए 4 ऑप्शंस होंगे. राइट ऑप्शंस यू हैव टू सिलेक्ट, बट यू हैव टू रीराइट द होल सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन. ओके, एंड 5 such questions will be there. You will get your 5 marks, 1 for each. Here comes to the other type of sub question, objective type. One word or phrase or term, like there will be a sentence given, any personal expense made by the proprietor. So drawings, personal expense, drawings. So drawings is your answer. This kind of one word or phrase or term. Okay, 5 will be asked, 1 for each. Easy. Okay, once again next type of objective type question is find the odd one. Now ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं. ठीक है, but see for this you will have to understand that the whatever chapters you are going to have, whatever chapters you are going to study throughout the year, you have to understand them thoroughly, understand each and every concept, understand each and every entries or the transactions or every word ka meaning. Then only you will be able to bifurcate, differentiate among those 4 words, because most of the time they are very alike. So यार तुमको confuse हो जाएगा कि यार क्या करें. So your concepts should be very clear. See, accounts you can score 80 out of 80 only if your concepts are clear. You cannot rattofy, you cannot just छापोफy और बस मगअप करके नहीं जा सकते. Understood? Bookkeeping and accounts is a subject you will enjoy solving, you will enjoy studying, but you must understand the concept. जब तक concept clear नहीं है आपको अकाउंट्स नहीं पसंद आएगा. ओके, सो फॉर दिस योर कंसेप्ट क्लियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल हेल्प यू ओवर हियर. 5 questions, 1 mark each. Do you agree or disagree with the following sentence? See, this is very simple one. Whether you agree or you disagree, you don't have to give reasons for that why. Okay, understand the difference. सिर्फ agree या disagree लिखना है. You are not supposed to write why do you agree or why you do disagree. Understood? Okay, you just have to write whether you agreed or you don't agree, which means you disagree. So why is not supposed to be asked. So again very simple, 5 questions, 1 mark each. Okay,
Then calculate the following. Now calculate the following. Last year 11th standard में you had calculated अगर assets दिया है, liabilities दिया है, ठीक है, and you were supposed to calculate the capital amount. Under remember or not? Okay, so like that, those type of questions relating to this year's chapters will be coming. Again, concept clearance is important here also, but same 5 marks question, 1 mark each, very easy questions. Okay, then give specimen of bills of exchange. Now specimen of bills of exchange, specimen means an example, a rough diagram. Now what is specimen of bills of exchange? Bills of exchange is a bill जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल. तो वो क्या बिल होते हैं? बिल्स रिसीवेबल मतलब कौन से बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, ठीक है, या बिल कभी कभी आता था कि डिसऑनर हो गया या डिस्काउंटेड विद बैंक हो गया, ऐसे एंट्रीज आती थी डिसऑनर की, ठीक है, जर्नल एंट्री. सो व्हाट इज दैट? तो दोज बिल, वो बिल कैसा होता है, उसका एक फॉर्मेट. ओके, वेरी इजी, अगेन वेरी स्कोरिंग. एक ही क्वेश्चन आएगा इसका विच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 5 मार्क्स. मीन्स आपको डिटेल्स दिए हुए होंगे, उसके ऊपर से आपको बस एक स्पेसिमेन ऑफ बिल बनाना है. अंडरस्टूड? वेरी इजी, प्रैक्टिस से यू विल बी एबल टू गेट 5 आउट ऑफ 5. बट देखो ये जितना इजी स्कोरिंग है ना, उतना काफ़ी सालों से आया नहीं है, ठीक है. सो अगर ये आ गया तो 5 मार्क्स पॉकेट में है, बट काफ़ी साल से तो नहीं आया है. अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इट्स काइंड ऑफ अगेन एक टेबल होगा जहाँ पे जो आप एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस आपने किए हैं, ठीक है, इन योर स्कूल डेज 9th and 10th. सो एक्टिविटी टाइप ऑफ क्वेश्चन है वेयर सर्टन डिटेल्स विल बी फिल्ड, सर्टन विल बी मिस्ड आउट एंड यू विल हैव टू फिल देम. अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी ईजी. नाउ ये जो अब तक के 7 टॉपिक्स हुए, ठीक है, ये 7 के 7 टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू मी, ओके, आई वुड प्रिफर कि भाई ये 7 टॉपिक्स में से ही आपको आए क्वेश्चन में बोर्ड के. ओके, बिकॉज सारे के सारे कैसे हैं, 1 वर्ड है या वेरी इजी सॉल्विंग है, जहाँ पे कंफर्म आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे. हाँ, जहाँ पे यहाँ पे आपको अगर 1 वर्ड या फ्रेज टर्म देना है तो यहाँ पे यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट योर स्पेलिंग्स, बिकॉज इफ़ यू आर स्कोरिंग 95 और अबव, चीफ मॉडरेटर विल बी चेकिंग योर पेपर वंस अगेन, एंड इफ दैट पर्सन कम्स टू नो अगर उससे ओवरलुक नहीं हुआ वो स्पेलिंग मिस्टेक, तो यू विल बी लूजिंग योर मार्क. तो यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखना है. बाकी ये जो फर्स्ट से लेके 7 तक, लाइक फर्स्ट से लेके जी तक का ऑप्शन था, यहाँ पे दिस इज़ वेरी मच स्कोरिंग. जस्ट हैव टू राइट 1 वर्ड और जस्ट ट्रू और फॉल्स, इट इज़ लाइक दैट. ओके, जस्ट वेरी सिंपल सॉल्विंग. सो यहाँ पे इट इज़ वेरी ग्रैबिंग, आप ग्रैब कर सकते हो मार्क्स 5 आउट ऑफ 5. नेक्स्ट में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट लिटिल ग्लिचेस, ठीक है. देख लो, कंप्लीट द सेंटेंसेस. अभी कंप्लीट द सेंटेंसेस में कभी कभी दोज हु आर नॉट that much fluent with English, they might make some mistakes while completing the sentences. Grammatical errors or very simple placement of or selection of the correct word for the completing that sentence. Means many times it happens that you have understood what it is but you don't get the correct word to complete the sentence. Understood? So यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अगर आए तो I feel like you might lose half a mark or 1 mark if you have not prepared well. Okay, बट आई एम श्योर कि तुम लोग सब लोग प्रिपेयर करने ही वाले हो. देन आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली. अगेन आंसर इन 1 सेंटेंस, डेफिनेशंस होंगे, कंसेप्ट क्लियर है तो आप लिख सकते हो, बट अगेन कहीं ना कहीं फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन अगर रॉन्ग गया, ओके, सो यू माइट लूज हाफ अ मार्क. सो दिस इज अगेन आई वुड प्रिफर कि एग्जाम में आपको ना ही आए तो अच्छा है. अगेन दिस ऑल्सो 1 मार्क ईच, 5 क्वेश्चन 1 मार्क ईच. नाउ दिस कम्स वेदर स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन. यहाँ पे आपको रीजन देना है, ठीक है, यहाँ पे क्या देना है, आपको रीजन देना है व्हाई इट इज़ ट्रू और व्हाई इट इज़ फॉल्स. तो यहाँ पे आपको 2 ही क्वेश्चन आएंगे, इट विल बी कंसिस्ट 2.5 मार्क ईच. ये आपको प्रॉपर आंसर बना के लिखना पड़ेगा. अंडरस्टूड? सो यहाँ पे 3 ऐसे आए, जस्ट दिस इज माई पर्सनल व्यू कि दिस 3 आर लाइक जहाँ पे शायद स्लाइटली हमारे मार्क्स ऊपर नीचे होने का चांस है, ठीक है. सो हमें इसके लिए ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी है, और अगर इनमें से आ गया तो ग्रेट ही है. ओके, दिस ईयर इट हैज़ कम फ्रॉम दीज ओनली, ये तीनों नहीं आए थे, ठीक है. सो दिस ईयर का पेपर वॉज वेरी वेरी ईजी, लाइक मतलब जितना ईजी बोल सकते हैं ना उतना, मतलब इतना ईजी बनाया ना कि बच्चों को खुश कर दिया. ओके, सो लेट्स बी ग्रेटफुल, लेट्स बी होपफुल कि आपके लिए भी सेम हो. ओके, सो अगर इसमें से आया तो बिंदास, आई थिंक 20 आउट ऑफ 20 इज़ इन योर पॉकेट. इसमें से आया, स्टिल आई trust all of you that you will be putting your we will be putting the hard work to get 5 out of 5 in any of these also if comes. Okay, so here we are completing with our first question which consists of
20 मार्क्स। सो आउट ऑफ 80 अपना 20 मार्क्स का यहाँ पे कवर अप हो गया है। 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आराम से 20 का 20 पॉकेट में। सो 20 आउट ऑफ 80 मीन्स 25% तो पॉकेट में आ गया। नाउ लेट्स सी रिमेनिंग 75% के लिए हमें क्या करना है। ओके, टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 and 5. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 and 5. First we'll pay attention on question number 2 and 3. So now question number 2 and 3, you will see it is of 10 mark each question. What they have said, solve any one. Okay, solve any one. कितने ऑप्शन होंगे? Any two. So you have 4 chapters here. Admission of a partner, admission of a partner, retirement of a partner, dissolution of a partnership firm, and bills of exchange. These are your 4 chapters from the syllabus. Now from this, out of these 4, any 2 questions will be asked. How many? Any 2. From these 4 chapters, any 2 questions will be asked, and you are supposed to solve only one of them. Understood? So these 4 chapters have weightage of 10 marks each. They will be asked any 2 from these 4, and you are supposed to solve only one out of this 4. Understood? So probably it is 1 out of 4 you have to solve. But what is the glitch कि यहाँ पे सपोज जो 2 आ जाएंगे, ठीक है, सपोज यहाँ पे आपको है एडमिशन और डिसोल्यूशन, उसमें से आपको कोई एक करना है, तो बाकी के 2 चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन यू हैव टू सॉल्व एनी वन. Now what is said here? See, any 2 remaining problems from question number 2. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा नहीं है कि चारों में से कोई 2 चैप्टर का कुछ आएगा ही नहीं, चारों के चैप्टर के एक क्वेश्चन तो आएंगे. अंडरस्टूड? 2 will be here, 2 will be here, but you have to attempt any one. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, just you know to save your time, out of these 4 chapter any one chapter you can skip. Why any one? सपोज यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चारों के चारों चैप्टर्स बहुत ही ईजी है, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने से बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं किया. ओके, यू हैव स्किप्ड डूइंग इट कम्प्लीटली. सो सपोज यहाँ पे आपको एडमिशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया, आपने एडमिशन अच्छे से किया, यू कैन अटेम्प्ट इट. अंडरस्टूड? या तो रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया, यू कैन अटेम्प्ट रिटायरमेंट, या तो डिसोल्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया, यू कैन अटेम्प्ट द डिसोल्यूशन. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे अगर उसके साथ का ऑप्शन है आप दूसरा वाला कर सकते हो, बाकी के 2 भी आपको आने चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट स्किप एनी 2. अगर आपने 2 छोड़ दिया और वही तो यहाँ पे सपोज आ गए, सपोज आपने सोचा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रिटायरमेंट नहीं करना है, ठीक है, आप सोचोगे कि भाई एडमिशन और रिटायरमेंट आएगा, मैं एडमिशन करूँगा, डिसोल्यूशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा, मैं डिसोल्यूशन करूँगा. बट व्हाट इफ यहाँ पे आपको रिटायरमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, ये पैर बन गई, तो दोनों में से कोई एक तो करना पड़ेगा. तो यू कैन नॉट स्किप एनी 2. Out of this 4, you can skip any one if you want. I would suggest don't go for that lane, okay? Don't take that road. Understood? I would never prefer taking that road because बहुत easy है यार, सारे के सारे चैप्टर सच्ची मस्का है. जो छोड़ने लायक होगा मैं बता दूंगी, ठीक है, but these 4 तो are like, you know, you can do it within a blink of an eye. So just pay attention whenever these chapters are happening. Ask your doubts, practice as much as you can. I'll be giving lots and lots of practice sums with the solutions. So I don't think there would be any difficulty. So but still अगर आपको टाइम सेव करना है, ठीक है, देखो एक चीज़ होती है, आई बिलीव इन कि भाई ऐसा नहीं कि कोई चीज़ करनी ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, सीखना सब है, बट अगर हमें कोई कुछ हमारा टारगेट है, वी वांट टू अचीव समथिंग, ओके, योर टारगेट इज ऑफ सपोज 98%, 99% और 100%, ओके, आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है. तो अभी जहाँ पे मुझे पता है कि भाई मैं एक पे एनर्जी कम डाल के बाकी 3 पे मेरा और फोकस कर सकती हूँ और उसमें से मुझे 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है, सो आई वुड प्रिफर, this is called as, you know, saving of energy. This is what called as smart work. Understood the difference between smart work and hard work? But I will never tell you to skip it completely. क्यों भाई, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव्स में अपने को आने वाला है ना. ऑब्जेक्टिव सिर्फ रट्टा मार के गिरो 1 2 3 ऐसा करके तो नहीं करना है ना. बोर्ड्स है, गलती से पकड़े गए तो जग गए सीधा जेल, ठीक है, साल खराब हो जाएगा. सो वैसा नहीं करना है. सो फॉर दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फॉर एबल टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स, अटेम्प्ट द ऑब्जेक्टिव्स करेक्टली, हमें कंसेप्ट सबका पता होना चाहिए. बट हम उसके ऊपर थरर मेहनत, एक चैप्टर है जिसके ऊपर हम थरर मेहनत नहीं करेंगे, बिकॉज हम हमारी एनर्जी सेव करेंगे फॉर रिमेनिंग 3 चैप्टर्स कि भाई वहाँ से कुछ भी आए तो अपने को आना चाहिए. समझ में आया? अंडरस्टूड? नाउ ये हो गया ये 4 चैप्टर्स की बात, विच इज वेटेज ऑफ 10 मार्क्स ईच. तो मतलब ये हर एक चैप्टर का 10 मार्क का वेटेज है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5.
अगेन 4 चैप्टर्स है, दोनों में सेम 4 चैप्टर्स है. 2 will be asked in the question number 4, 2 will be asked in question number 5, 2 will be asked here, 2 will be asked here. Understood? Same. Any one you have to attempt. Any 2 problems from these 4 will be asked here. Remaining 2 problems will be asked here. Okay, again you have to attempt any one. So what are the chapters here? Death of a partner, issue of shares, analysis of financial statement and computer accounting. Usually I have seen kids leaving computer accounting. यहाँ पे भी same probability होगी ना. You can leave one out of these 4. You can skip any one out of this 4, right? Same probability. So I have seen kids, not touching or choosing to leave computer accounting. Why? Because ये थोड़ा theory आ जाता है. ठीक है, अकाउंट्स में हमको पता है हम राइट एंट्रीज मार के, हम राइट सम सॉल्व करके हम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, स्टेप वाइज मार्क्स लेके, प्रॉपर अमाउंट्स के मार्क्स लेके, एंट्रीज के. तो यहाँ पे थियोरी में कौन रिस्क लेगा ना. थियोरी वी ऑल नो दैट थियोरी में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मार्क्स काटने का ऑप्शन मिल ही जाता है. सो यूजुअली किड्स डोंट अटैम्प्ट दिस. और हम एज अ टीचर भी बोलते हैं कि थियोरी क्वेश्चंस मत अटैम्प्ट करो, जितना हो सके उतना अकाउंट्स के पेपर में गो फॉर दी अदर चैप्टर्स. अंडरस्टूड? बट अगेन वी विल बी डूइंग इट, वी विल बी हैविंग बेसिक नॉलेज अबाउट इट, बिकॉज हमें वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम आएगा. अंडरस्टूड? सो ये हो गया. अभी देखो यहाँ पे लेकिन मार्क्स का वेटेज कम हो गया है. दिस इज 8 मार्क्स ईच. तो ये जो 4 चैप्टर्स है उनकी इंडिविजुअल वेटेज कितनी है? ओनली 8 मार्क्स पर चैप्टर. सो ईच चैप्टर हैज़ एन वेटेज ऑफ 8 मार्क्स. अंडरस्टूड? आर वी क्लियर? तो इसके साथ हमारा 10, 20, 8, 16. सो 20 + 16 36 एंड अर्लियर हमने 20 मार्क्स का किया. सो टोटल हमारा 56 मार्क का पेपर यहाँ पे कवर हो चुका है. ठीक है, आप देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है, क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी आता है, फुल ऑफ ऑप्शंस. तैयारी करने के लिए बहुत मज़ा आता है. ठीक है, अकाउंट्स इज़ फन and you must enjoy solving accounts. Okay, चलो अभी last 2 questions हैं which are compulsory questions. Let's move on to them. 56 marks का पेपर हमारा कवर हो गया था. Remaining 24 marks now. Okay, so 12 mark each to these 2 chapters. कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये चैप्टर करना ही करना है. ठीक है, नाम देख लो, प्रॉब्लम ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न, विच इज़ द चैप्टर नॉन प्रॉफिट कंसर्न. नॉन प्रॉफिट कंसर्न हमारे NGOs होते हैं, क्लब हाउसेज होते हैं. ठीक है, लाइब्रेरीज होती है, तो उनका अकाउंटिंग कैसे करते हैं, दैट इज़ द चैप्टर. 12 मार्क्स, वेरी वेरी ईजी चैप्टर, वेरी ईजी. ठीक है, एंड दिस यू मस्ट हैव हर्ड द नेम, प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स यू हैव ऑलरेडी सीन इन 11th स्टैंडर्ड. कितना मज़ा आया था, कितना ईजी था. 90% वो चीज़ सेम है. क्या सीखा था आपने 11th में? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स नहीं. क्या सीखा था? फाइनल अकाउंट्स फॉर अ प्रोप्राइटरी कंसर्न. प्रोप्राइटरी कंसर्न क्या होता है? जहाँ पे सिंगल ओनर है. ठीक है, यहाँ पे अभी क्या है? पार्टनरशिप. तो पार्टनर्स मीन्स मोर देन 1. तो जब मोर देन 1 पार्टनर्स है, ठीक है, उसका हमें फाइनल अकाउंट्स करना है. सो ओनली व्हाट विल द डिफरेंस इन द कैपिटल अकाउंट. ओके, योर ट्रेडिंग अकाउंट विल रिमेन द सेम, योर प्रॉफिट एंड लॉस विल रिमेन द सेम, योर बैलेंस शीट विल रिमेन द सेम. ओनली थोड़ा सा कुछ नया सीखेंगे कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, वो एक नई चीज़ थोड़ी सी सीखेंगे. बाकी और एडजस्टमेंट्स आर गोइंग टू बी द सेम. द पैटर्न इज सेम कि भाई एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट आना है, एग्जैक्टली सेम. और अकाउंट्स के आप बाकी चैप्टर्स भी देखोगे ना, सब में वैसा ही है, बिकॉज ये अकाउंट्स है. एक तरीके के बिजनेस के लिए डेबिट और क्रेडिट के रूल अलग, या दूसरे तरीके के बिजनेस के लिए, टाइप ऑफ बिजनेस के लिए डेबिट या क्रेडिट का रूल अलग, ऐसा नहीं हो सकता. सो व्हाट यू हैव लर्नड इन योर 11th स्टैंडर्ड, बार बार मैं 11th स्टैंडर्ड में बोल रही थी कि भाई 11th का बेस अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो 12th स्मूथ जाएगा. अंडरस्टूड? सो दैट यू विल एक्सपीरियंस दैट नाउ, दैट कितना ईजी जाएगा अगर 11th में अच्छे से पढ़ाई किया है तो. सो दीज आर योर फिक्स्ड सब्जेक्ट्स, अभी फिक्स्ड चैप्टर्स जिसके ऊपर आपको कन्फर्म क्वेश्चन आने हैं. यहाँ हमारा पेपर ख़त्म होता है. टोटल ऑफ 80 मार्क्स. तो हमने देखा 12 मार्क्स वाले चैप्टर्स कौन से हैं? पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, और दूसरा है नॉन प्रॉफिट कंसर्न, मीन्स NPO बोलते हैं हम उसको. ठीक है, शॉर्ट में हम उसको क्या बोलते हैं? NPO. ये 12 मार्क्स के चैप्टर्स हैं. फिर 10 मार्क्स के चैप्टर्स कौन कौन से थे? सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर था. ठीक है, फिर उसके साथ क्या था? तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. उसके साथ क्या था? डिसॉल्यूशन. हु रिमेंबर्स? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसके साथ क्या था? डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म.
और उसके साथ वन मोर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BOE वी विल कॉल इट, ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये 10 मार्क्स के वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, ओके, एंड 8 मार्क्स वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं? सो डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ के बाद दूसरा क्या था? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स दोज स्टूडेंट्स हु आर ऑफ SP, ठीक है, जिन्होंने SP लिया है, मैथ नहीं लिया, उनके लिए काफ़ी स्मूथ जाएगा, बिकॉज SP में ये काफ़ी, इससे भी बहुत डिटेल में चीज़ें आती है, ठीक है। देन इशू ऑफ शेयर्स, फिर क्या था? कंप्यूटर अकाउंटिंग, एंड वन मोर वॉज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सॉरी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम यही ऑर्डर में जाएंगे। सी, मुझे है ना, आई एम काइंड ऑफ पर्सन कि कोई चीज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या भारी है या ज़्यादा बड़ी है तो आई वुड टैकल दैट थिंग मोर। मतलब लाइफ में अगर कोई बोले कोई चीज़ नहीं हो सकती, मैं उसके ऊपर पहले फोकस करती हूँ, ठीक है। मतलब कोई चीज़ जैसे डर लगता है, फेस योर फियर फर्स्ट, ओके, माई थिंग इज़ लाइक दैट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो वेरी फर्स्ट चैप्टर वी विल बी स्टार्टिंग इज विथ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। देन वी विल बी डूइंग दी NPO, देन वी विल बी डूइंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर एडमिशन के बाद इमीडिएटली रिटायरमेंट, एंड रिटायरमेंट के बाद इमीडिएटली डेथ, बिकॉज दीज आर इंटरकनेक्टेड। आपको ये आ गया, आपको ये दोनों 80% चैप्टर ऑलरेडी आ गया, इसके बाद ये आ गया, आपको 95% आ गया, यहाँ पे बाकी का रिमेनिंग 5% आ गया। दीज आर इंटरकनेक्टेड, अंडरस्टूड। सो ये पैटर्न में हम जाएंगे 3, 4, 5 वाले 8 मार्क है, पर पहले हम लोग इसको निपटा लेंगे बिकॉज ये इंटरकनेक्टेड है, बहुत ईजिली इसको समझ में आ जाएगा। ये 5 होने के बाद हम 6th करेंगे डिसोल्यूशन, अंडरस्टूड। देन वी विल बी डूइंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन वी विल बी डूइंग इशू ऑफ शेयर्स, देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लेते हैं, देन लास्ट में थियोरी चैप्टर कंप्यूटर अकाउंटिंग। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो, एंड वंस वी आर डन विद द सिलेबस वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द रिविजन्स, ओके। सो ऐसा नहीं कि भाई ख़त्म हो गया फिर क्या करेंगे, ठीक है। वी विल बी कॉन्स्टेंटली कीप ऑन डूइंग द रिविजन्स, प्रैक्टिसेस एज मच एज आई कैन। मैं आपको बार बार उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स, सम्स, ये वो सब हम करते रहेंगे, सो दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स। देखो 12th स्टार्ट हो रहा है, 10th में काफ़ी लोगों ने गलती क्यों, अरे 10th है, आराम से करेंगे, पूरा साल तो पढ़ना है, लास्ट में एग्जाम होता है, अभी से। और बहुत स्टूपिड एक्सक्यूज़ कोई देता है कि भाई अभी से पढ़ लिया या तब तक याद नहीं रहेगा। हाउ फुलिश, बचपन में की हुई गलतियाँ अभी भी याद है ना, ठीक है। सो हम अभी से रेगुलर स्टडीज़ करेंगे सो दैट बाद में प्रेशर ना आए, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल बी डूइंग systematical and regular studies. See, key to any success is the continuity and persistence. Understood? Consistency is very very much important. Consistency नहीं है so you will be lagging. कोई भी चीज़ करो, एक बार शुरुआत करते हो, जब तक मंजिल तक ना पहुँचो प्लीज़ उसको बीच में छोड़ना मत, ठीक है। बहुत सारे हम लोग वीडियोस, रील्स, हमने स्टोरी देखी ना कि भाई वो खोदता है थक के चला जाता है, पता चला थोड़ा सा और खोदा होता, ठीक है, तो नीचे हीरा मिलता है या नीचे खजाना होता है या वॉट एवर समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट डज इट मीन दैट एक बार कोई चीज़ की शुरुआत कर देते हो फिर थकना या रुकना नहीं है जब तक मंजिल नहीं मिलती, बिकॉज यू नेवर नो कि आप कहाँ कितने नज़दीक पहुँच गए हो। सो नेवर क्विट, नेवर लूज होप, ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट, ओके। Let's start the 12th standard with a positive note, and we will be studying it throughout the year consistently. What is important? The consistency, okay? So let me know whatever you require, whatever are your views. Just like, share and comment and subscribe. Thank you.